Assalamu alaikum, student of class 7. I am your English teacher, Mrs. Fazil Salim. How are you all? I hope you all are fine and safe. And how was your winter vacations? Have you done your winter vacation homework? Okay. As you know, your winter vacation has been over, has been finished now, and your online classes has been started again. In my last class, I gave you some question answers from the chapter The Secret of Seaview Cottage. It was your chapter 1, and I explained it in detail you. After explanation the chapter, I gave you the exercise. First of all, word meanings from your book, and then I gave you question answers of this chapter. Okay, now we are going to do for the next exercise. This is your English book for class 7. It was your chapter 1, The Secret of Seaview Cottage. Okay, you have to done word meanings from the book. Like here, some word meanings are on page number 9. On page number 11, one is on this page and another on page number 14 and page number 16, page number 17 and on page number 19. You have to do all these word meanings from your book in your notebooks. आफ्टर वर्ड मीनिंग आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने थे. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिए थे. और नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले मैं इन क्वेश्चन आंसर्स को रिपीट कर देती हूँ एज ए रिकॉल. ठीक है, आई विल नॉट एक्सप्लेन देम अगेन बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स बिफोर in my previous class, last class. So I repeat as a recall. After then I will go on the next exercise. Question number 1 was, how long was the Sea Scout group going to be on holiday? The Sea Scout group was going to be on a month's holiday. क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा गया था कि इसे कट कर दीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which expressions tell us that the Sea Scout enjoyed the adventure? Their hearts were beating with excitement and hardly able to credit the fact that they were having a great adventure. Number 4 was, Bob Willis was scared after returning from staircase. Do you agree? Give reason. Yes, he was scared. He was gasping and scanning ghost. He fell down on the floor due to fear. Number 5, question number 5 is, which words and phrases tells
tells us that the treasure had been hidden a long time? The answer is bleached skeleton, jumping smokes, bones, gold and silver articles were hidden in a deep recess in the wall. Question number 6. What were the two secrets of Seaview Cottage? Answer is the first secret of Seaview Cottage that was revealed was tarnished gold and silver articles which were hidden in the wall. The second secret was that 3 people were contrabanding goods illegally. Question number 7. What do you think happened to the smugglers? I think the smugglers were got arrested. Question number 8. What do you think was the most exciting part of the story? The answer is the most exciting fact was when the scout crew find out the heap of gold and silver, because they were not expecting this to happen. They were just patrolling to find their partner. यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस आप लोगों को करने थे। पहले आपको वर्ड मीनिंग्स करने थे जो आपकी बुक में गिवन है। एज इट इज आपको बुक से वो वर्ड मीनिंग कॉपी डाउन करने हैं और उसके बाद आपने ये 8 क्वेश्चन आंसर्स करने थे जो आई होप कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। एज ए रिकॉल मैंने इनको रिपीट कर दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन अभी भी अगर आपको है तो वो दूर हो जाए। ठीक है, आफ्टर देन योर एक्सरसाइज बी, एंड द एक्सरसाइज बी इज, it is mentioned in your book, reference to context. Read these lines from the story, then answer the questions. There are 2 lines given you. ठीक है, आपने इन लाइंस को पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू द स्टोरी यू हैव टू गिव द आंसर दैट ये किसने किससे कहा। The lines are, but how did smugglers manage to miss it? I should have thought it would be impossible not to see this lot. These are 2 lines and there are 4 questions about these lines and you have to give the answers of these 4 questions. And these 4 questions are about the above given 2 lines. The question 1 is, who says these words and to whom? यानी ये lines जो है वो किसने कही और किसको कही। ठीक है, whom means किसको, किसको कही गई हैं ये lines। तो what is the answer? Yes, try to give the answer. Okay. No? It's okay. I give you the answer. Answer A is Mr. Melman said these words to Gerald Turnbull. ठीक है, मिस्टर मेलमन ने ये वर्ड्स किससे कहे? जी, जेरल्ड टर्नबुल से ये वर्ड्स जो हैं मिस्टर मेलमन ने कहे हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज,
क्वेश्चन बी, व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट, यानी कि ये किस चीज के बारे में ये बात कर रहे हैं। आंसर बी इज, इट इज बीइंग स्पोकन अबाउट द पाइल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो एक ढेर, एक बहुत सारा जो गोल्ड और सिल्वर जो वहां उन लोगों को पड़ा हुआ मिला था, वो लोग उसके बारे में ये बात मिस्टर मेलविन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन बी, इट इज बीइंग स्पोकन अबाउट द पाइल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। नाउ द क्वेश्चन सी, हाउ हैव द स्मगलर्स मिस्ड इट, स्मगलर्स ने इसको कैसे मिस कर दिया। क्वेश्चन सी इज, आंसर सी इज, because it uses all covered by plaster which was concealed by layer of dirt। क्या रीजन था कि उन्होंने इसे मिस कर दिया, क्योंकि ये तमाम जो पाइल था या सोना या चांदी जो भी चीज थी, ये सारी कवर थी किससे, प्लास्टर से, यानी उस पर प्लास्टर हुआ हुआ था, सीमेंट के जरिए जो प्लास्टर हम दीवारों पे होता है आप लोग जानते हैं। ठीक है, और ये उसके, और फर्दर ये कि उसके ऊपर डर्ट और मिट्टी की लेयर जो है, एक तह जो है वो भी जमी हुई थी। नाउ क्वेश्चन डी, वेयर डू यू थिंक इट केम फ्रॉम, आपका क्या ख्याल है कि ये सब कुछ कहां से आया था। मे बी फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कहना चाहिए कि हम इसमें इमेजिन कर सकते हैं, हम इसमें गेस कर सकते हैं कि कहाँ से आया होगा, बिकॉज स्टोरी में एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया कि ये कहाँ से आया है ये सब कुछ। ठीक है, सो वी कैन इमेजिन मे बी फ्रॉम अ बैंक, राइट, इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन डी। Number 1 has been completed. Okay, now number 2, you are too late sir, he called out, आपको बहुत देर हो गई है उसने कहा। ठीक है, now the questions, who says these words and to whom, why does he need to call out, what does the speaker mean, what has he done। So question A is, who says these words and to whom, ये words किसने कहे और किसको कहे। So the answer A is, Captain Sturt said these words to Mr. Melvin। कैप्टन स्टर्ट जो थे उन्होंने ये वर्ड्स कहे मिस्टर मेलविन से, राइट। आप इसका क्वेश्चन बी जो है उसे छोड़ दीजिए, इसका क्वेश्चन बी आप कट कर दीजिए। नाउ कम ऑन क्वेश्चन सी, व्हाट डज द स्पीकर मीन, स्पीकर का यानी कि जो ये बात कह रहे हैं उनका क्या मतलब है। What has he done, और उन्होंने क्या किया। आंसर सी, he meant about the 4 people whom he nabbed them with his scout master। ठीक है, वो उन 4 लोगों की बात कर रहे थे जिनको उन्होंने पकड़ लिया था स्काउट मास्टर की मदद से, और वो 4 लोग कौन थे, वो 4 लोग स्मगलर्स थे, राइट। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 4 है, हियर आर सम नोटिकल एक्सप्रेशंस, व्हाट डू दे मीन्स। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस आपको यानी कि इनको दिए हुए हैं आपको यहाँ नीचे बॉक्स के अंदर।
ठीक है, आपने इनकी मीनिंग्स बतानी है कि ये किसके बारे में ये एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। ए पे है लैंड लबर, बी है बी ऑल एट सी, सी है सेल क्लोज टू द विंड, डी हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, ई I strewn in a teacup, F trip of the iceberg, G catch the drift और H है be in deep water। तो इन्हें आप अपनी कॉपी में किस तरह करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द क्वेश्चन 4, देन आप ए लिखेंगे। आप कॉलम्स भी बना सकते हैं वर्ड मीनिंग की तरह से सॉरी, वर्ड मीनिंग की तरह से कॉलम बना के भी लिख सकते हैं कि एक आप ये एक्सप्रेशन लिखें और उसके सामने वाले कॉलम में आप इसकी मीनिंग लिखें। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप पहले एक्सप्रेशन को उतार लें, ठीक है, और फिर उसके नीचे उसकी मीनिंग लिख दें और देन आप दूसरा उतारें और उसके बाद उसकी मीनिंग लिख दें। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मिस इसको कैसे करना है। ठीक है, मैंने दोनों ऑप्शन आपको दे दिए हैं, जिस तरीके से आप अच्छी तरह सफाई से कर सकते हैं उस तरह से आप इसको कर लीजिए। सो ए इज लैंड लबर। लैंड लबर मीन्स अ पर्सन अनफेमिलियर टू सी और सेलिंग, यानी ये ऐसे शख्स को कहते हैं जो समंदर और समंदर में सेलिंग यानी कि कश्ती या बोट चलाना ना जानता हो। अनफेमिलियर कहते हैं जो वाकिफ ना होना, समंदर से या समंदर में बोट या कश्ती चलाने से जो नावाकिफ हो उसे कहा जाता है लैंड लबर। सॉरी, बी है बी ऑल एट सी। इसकी मीनिंग क्या है? someone who's at the sea is completely lost और confused, यानी वो शख्स जो समंदर में मुकम्मल तौर पे जो है वो कंफ्यूज हो और कुछ जानता ना हो। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि इसकी मीनिंग्स जो है वो जरा बड़ी है, तो आप इसे कॉलम बना के भी कर सकते हैं और जिस तरह ये सामने आपके लिखे हुए हैं आप टॉप पे जैसे हेडिंग देते हैं इस तरह से आप ये एक्सप्रेशंस लिखें और उसके नीचे उसकी मीनिंग लिख लें, या फिर आप इसको कॉलम बना के भी कर सकते हैं जैसे आप लोग वर्ड मीनिंग करते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, लेकिन मुझे जो है वो नीट एंड क्लीन काम आपका चाहिए, आप जिस तरह से भी करें इसको। नाउ सी, sail goes to the wind। सी है to sail in direction close to that from which the wind is blowing, यानी कश्ती की आपकी डायरेक्शन, कश्ती या बोट की जो आपकी डायरेक्शन है वो बिल्कुल उस तरफ हो जहां हवा का रुख है, जिस तरफ हवा चल रही है। ये इसकी मीनिंग है। Now D is have avail of a time। आंसर D is enjoying by yourself, अपने तौर पे enjoy करना। Now E, I strewn in a teacup। ये भी एक एक्सप्रेशन है, एक मुहावरा है और इसकी मीनिंग है समथिंग हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोजिशन, सॉरी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? जो चीज आप मतलब हवा की डायरेक्शन में आप किसी चीज को लेकर जा रहे हैं, उसके बाद आपका है F और F है टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग आप को पता है कि वो जो फ्रोजन
सीज होते हैं, जो जमे हुए समंदर होते हैं, बर्फ बने हुए होते हैं, उसमें जो छोटे बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं उनको आइसबर्ग कहते हैं। बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं बर्फ के, उसको कहते हैं आइसबर्ग। इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग लेयर्स। यहां पे इसकी मीनिंग है किसी ऐसी चीज का कोई छोटा सा हिस्सा जो किसी लेयर के नीचे, किसी तह के नीचे आया हो। अब है जी, कैच द ड्रिफ्ट। इसकी मीनिंग है टू अंडरस्टैंड द जनरल मीनिंग ऑफ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी आम सी मीनिंग, किसी भी इंफॉर्मेशन के किसी हिस्से की एक कॉमन सी जो मीनिंग होती है उसको अंडरस्टैंड करना। एच है बी इन डीप वाटर। बी इन डेंजरस सिचुएशन, इसका मतलब है किसी खतरनाक सूरत हाल में होना, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। और इसको करने का तरीका भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। इसमें आपको किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स आपने सबसे पहले वर्ड मीनिंग किए हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर उसके बाद आप ये एक्सरसाइज आप करेंगे, जो मैंने आपको ये 2 एक्सरसाइजेस करवाई हैं। अब उसके बाद आपने एक और क्वेश्चन करना है जो मैं आपको बता रही हूं। ये आपका क्वेश्चन है जो इन एक्सरसाइजेस के बाद आप करेंगे। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर मेलमैन। मिस्टर मेलमैन के कैरेक्टर के बारे में आप बताएंगे। वो उनका कैरेक्टर स्केच उसे कहते हैं जो हम किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं कि वो कौन है, उनका क्या काम है, वो कैसे हैं, ये सब बताने को कहते हैं कैरेक्टर स्केच। तो मिस्टर मेलमैन का कैरेक्टर स्केच आप क्या बताएंगे? पहले आप हेडिंग देंगे मिस्टर मेलमैन, उसके बाद मिस्टर मेलमैन वॉज अ वेल्दी स्काउट मास्टर ऑफ द ट्रूप ऑफ सी स्काउट्स। He was wise and generous towards his scouts and owns a good quality of leadership and bravery. मतलब क्या है इसका कि मिस्टर मेलमैन, आपने स्टोरी में भी पढ़ा है कि मिस्टर मेलमैन जो है वो एक अमीर स्काउट मास्टर थे, यानी बहुत जो ट्रूप सी स्काउट्स का जो ट्रूप होता है उसके स्काउट मास्टर थे वो, और वो बहुत अक्लमंद, वाइस का मतलब होता है अक्लमंद, वो बहुत ही अक्लमंद और ज़हीन इंसान थे। किस बारे में? स्काउट्स के बारे में। और उनके पास स्काउट्स को हैंडल करने की बहुत ही अच्छी क्वालिटी उनके अंदर थी और वो एक बहुत अच्छी लीडरशिप करने के काबिल थे और बहुत बहादुर इंसान थे। ठीक है, ये उनके कैरेक्टर की क्वालिटीज हैं जो आप इस कैरेक्टर स्केच में बताएंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टर्स नेम विच यू हैव रेड इन द स्टोरी। अब इस स्टोरी में आपने एज यू नो बहुत सारे आप लोगों ने कैरेक्टर्स पढ़े हैं। ठीक है, इस स्टोरी में बहुत से कैरेक्टर्स आए हैं जिनमें से कुछ के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो पहले आप एज इट इज जैसे मैंने लिखा है आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आप आंसर देंगे कि कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर। यहाँ पे आप सम भी कह सकते हैं, सम कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे कौन है? मिस्टर मेलमैन। नंबर 2 जिमी। नंबर 3 बॉब विलीज। नंबर 4 जेरल्ड टर्नबुल। नंबर 5 जैक बार्टन। नंबर 6 जॉब। नंबर 7 डेविड जॉन्स। नंबर 8 कैप्टन स्टर्ट। ठीक है,
Here are some characters from the story and you can write more characters from searching the story। आपको स्टोरी को देख के अगर मजीद आपको कुछ कैरेक्टर्स और मिलते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं, आप इनको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरी पढ़ें और उसमें से आपको और कैरेक्टर्स मिलते हैं तो आप और भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको 8 लिखवाए हैं। तो ये आपका चैप्टर इस तरह यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस सबकी कॉपी में ये काम कंप्लीट होना चाहिए, मुझे सबकी कंप्लीट कॉपीज मिलनी चाहिए, ठीक है। विंटर वेकेशन आपकी खत्म हो चुकी हैं, अब कम बैक टू द स्टडी। आपको वापस आना है अपनी पढ़ाई की तरफ, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और जो काम आपको मिल रहा है उसे आप लोगों ने एक तो टाइम पे कंप्लीट करना है और दूसरे आपने उसे नीट एंड क्लीन वे में करना है। और आप लोगों को पता है कि काम करने से पहले आप लोगों को टाइटल पेज बनाना होता है, उसकी अच्छी सी हेडिंग, डेट वगैरह लिख के नीट एंड क्लीन काम सबका होना चाहिए। और इसके वर्ड मीनिंग्स जो है वो मीनिंग्स जिनकी लंबी होती है, आप लोग एक वर्ड उतारा करें, उसके बाद उसकी मीनिंग लिख के और फिर जितनी भी लाइंस खाली रहती हैं उसके बाद आप दूसरा वर्ड उतारें। मिक्सअप काम मुझे किसी का नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर वे में आपको जो बताया है काम करने का तरीका, उसी तरह से आप ये काम करेंगे। और विंटर वेकेशन सबने कंप्लीट कर लिया होगा, सबने सबमिट भी करा दिया होगा, ठीक है। और आपको मालूम है कि आपके विंटर वेकेशन के मार्क्स हैं, आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे। अब इस काम को जल्द से जल्द आप लोगों ने कंप्लीट करना है अपनी कॉपीज में। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप लोग ग्रुप में आके पूछ सकते हैं। अव्वल तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात इसमें है नहीं है, हर चीज मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी है। बेटा लास्ट में मैं आप लोग को एक बार फिर बता रही हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सुना या जिन बच्चों ने अभी तक काम नहीं किया है उनके लिए मैं दोबारा बता रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द टाइटल पेज, देन यू हैव टू डन वर्ड मीनिंग्स विच आर गिवन इन योर बुक ऑन डिफरेंट पेजेस। फर्स्ट पेज इज पेज नंबर 9, इस पे आपके वर्ड मीनिंग्स हैं, आपने वर्ड मीनिंग करने हैं। ये देखिए पेज नंबर 11 पे है। एक जो है पेज नंबर 13 पे है, उसके बाद पेज नंबर 14 पे आपके वर्ड मीनिंग्स हैं, पेज नंबर 16 पे आपके वर्ड मीनिंग्स हैं, 17 पे है, उसके बाद पेज नंबर 19 पे है, ठीक है। ये सारे वर्ड मीनिंग आपने कॉपी में करने हैं। उसके बाद आपकी ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये पूरे 8 क्वेश्चंस मैंने सिर्फ इसमें नंबर 2 जो है उसे कट किया है, ठीक है, इसे मैंने अलग से करवाया है। अभी तक जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उन्हें मैं बता रही हूँ, या जिन्होंने देर से ज्वाइन किया है, नंबर 2 मैंने कट करवा दिया था, ठीक है। उसके अलावा पूरे 7 क्वेश्चंस जो है वो आपको करवाए गए हैं। उसके बाद नीचे है आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसमें है रीड दीज लाइंस फ्रॉम द स्टोरी देन आंसर द क्वेश्चंस। ये नीचे 2 लाइंस लिखी हैं, उन लाइंस के बारे में नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर भी आपको सेंड कर दूंगी। और उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज सी है, वर्ड्स एंड मीनिंग। आप एक्सरसाइज सी मेंशन करके ये क्वेश्चन उतारेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 उतारेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका हियर आर सम नोटिकल एक्सप्रेशंस व्हाट डू दे मीन। ये क्वेश्चन उतारने के बाद मैंने आपसे कहा कि ये बॉक्स में ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिसकी मीनिंग आपको लिखनी है, तो आप इसे वर्ड मीनिंग की तरह भी कर सकते हैं और वर्ड उतार के उसके नीचे उसकी मीनिंग डेफिनेशंस की तरह भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से ऑप्शन है, लेकिन शर्त एक ही है कि मुझे नीट एंड क्लीन काम मिलना चाहिए, ठीक है। कॉलम बना के कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। इसके आंसर्स मैंने आपको सारे करवा दिए हैं।
ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको लास्ट में इन दी एंड मैंने आपको कैरेक्टर स्केच करवाया है। ये देखिए मिस्टर मेलमन का कैरेक्टर स्केच है और उसके नीचे इस स्टोरी से लिए गए कुछ कैरेक्टर्स के नाम हैं। और मैंने आपसे कहा कि आप स्टोरी पढ़ के अगर और कैरेक्टर्स भी इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इन कैरेक्टर्स के नाम को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू लीव। आई होप कि आप लोग वक्त पे और नीट एंड क्लीन काम अपना कर लेंगे, ठीक है। We will meet in our next class. Till then, Allah Hafiz.